गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अपनी क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन एंड माय नेम इज़ राविया। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3D ਜਿਓਮੈਟਰੀ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣਾ 9th ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ 2D ਔਰ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ x1 y1 ਐਂਡ z1 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ A B ਐਂਡ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕੁਛ KA KB KC ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਦ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ XYZ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਲੋਕਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ x1 z1 y1 ਔਰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ A B C। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, x x1 ਅਪੋਨ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y y1 ਅਪੋਨ B इज इक्वल टू z z1 अपॉन C। समथिंग कुछ ना कुछ K होया करूँगा क्योंकि स्कैलर पर मल्टीपल है। इज इक्वल टू K आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, क्योंकि K इज़ अ वैल्यू जी कि बिलोंग करती होगी, रियल नंबर के बिलोंग करती होगी। सो ये मेरे को की होगी, कार्टीजन फॉर्म होगी कि जी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो मान लो मैंने दे दिता एक पॉइंट दे दिता 2 3 5 और मैंने रेशोज दे दी 1 2 3। कहते दसो जी इक्वेशन ऑफ लाइन की होगी, तो आप कहेंगे x -2 अपॉन 1
इज इक्वल टू y माइनस 3/2 एंड इज इक्वल टू z माइनस 5/3 दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो हुण यही चीज़ अगर आप वैक्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करिए, वैक्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे को इक्वेशन की होंगी है, हुण इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ही होगी जो है, ठीक है, वैक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम स्ट्रेट लाइन के आप पिछे पढ़ के आए कि मैंने इस तरीके नाल कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिता होगा, उस रेशियोज होणगियां। ठीक है, पहली गल तो मैनू की होगा जो वैक्टर फॉर्म की गल हो रही है तो यही मैनू ए वैक्टर के नाम नाल देणगे। ठीक है, जो जनरल पॉइंट तुसीं इत्थे पी लै रहे हो वो तुहानूं आर वैक्टर के नाम नाल देणगे, और आर वैक्टर जनरली तुहाडे कोल की होया करूगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जैड के कैप होया करूगा, सिंपल। ठीक है, तो मतलब जिवें तुसीं लोकस फाइंड कर रहे सी पी दा एक्स वाई जैड इन कार्टीजन फॉर्म, तो इन वैक्टर फॉर्म तुसीं उहनूं किवें कहा करोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जैड के कैप की फॉर्म दे विच, और ये मेरे को कोई ना कोई बी वैक्टर होया करूगा जो हमेशा ही रिप्रजेंट कराया करूगा डायरैक्शन रेशियोज नूं। तो मेरे को की बन जाती है जी वैक्टर फॉर्म। देखो हुण पहली गल तो मैनूं कोई भी एक लाइन दी हुई है, ठीक है, हुण मेरे को जो ए पी वैक्टर है तुसीं देखिया होना पिछे ए बी पॉइंट और पी बी पॉइंट, ए पी वैक्टर है और बी वैक्टर का कुछ ना कुछ स्कैलर मल्टीपल है, और मैंने स्कैलर अपने वालों केड़ा ले लिया, लैम्डा ले लिया। क्यों ले लिया लैम्डा? क्योंकि कोई ना कोई स्कैलर मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को बी वैक्टर है, ठीक है जी, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज माई बी वैक्टर, दिस इज माई ए वैक्टर। ठीक है, तो ए पी जो वैक्टर है और बी वैक्टर का कुछ ना कुछ स्कैलर मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि दिस टू आर पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं तो स्कैलर मल्टीपल होंगे, सिंपल। हुण ए पी वैक्टर नूं जेकर तुसीं खोल के लिखण की कोशिश करो तो तुसीं किवें लिखोगे, पोजीशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वैक्टर। तो हुण पोजीशन वैक्टर ऑफ पी मेरे को की सीगा जी, आर वैक्टर सीगा, और पोजीशन वैक्टर ऑफ ए मेरे को की सीगा, ए वैक्टर सीगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वैक्टर। तो मतलब आर वैक्टर मेरे को किहदे इक्वल आ गया, लैम्डा इंटू बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। इसनूं कई बार इदां भी लिख दिंदे आ, ए वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वैक्टर, गा फर्क कोई नहीं है दोनों के विच। ठीक है, तो जेकर तुहानूं वैक्टर फॉर्म आ जाती है तो वैक्टर फॉर्म थोड़े को कुछ इस तरीके नाल दित्ती होया करूगी। ठीक है, और यह मेरे को की होया करती है, वैक्टर फॉर्म होया करती है, और ये मेरे को की होंदी है, ये मेरे को कार्टीजन फॉर्म होंदी है, सिंपल है। ठीक है, ईजी। हुण जेकर आपां नूं पुछ लैण कि दसो मैनूं ना कार्टीजन फॉर्म दे रखी है, कार्टीजन फॉर्म अगर दित्ती हुई है तो उसनूं कन्वर्ट करके दसो जी, उसनूं की कर दो, कन्वर्ट कर दो, किहदे विच कन्वर्ट कर दो, वैक्टर फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर दो, सॉरी हाँ जी वैक्टर फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उन्होंने तुसीं वैक्टर फॉर्म दे विच कन्वर्ट किवें करोगे जेकर तुहानूं कार्टीजन फॉर्म ऑलरेडी दित्ती हुई है। हुण इहदे विच देखो कार्टीजन फॉर्म अपने कोल किसी भी लाइन की किद्दां हुंदी है, एक्स माइनस एक्स वन एक पर्टिकुलर पॉइंट दिता हुंदा अपॉन ए विच इज आर रेशियोज एंड इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जैड माइनस जैड वन अपॉन सी। इस तरीके नाल मैनूं वैक्टर फॉर्म है जो हो दित्ती हुई हुंदी है। ठीक है, हुण इहदे विच अगर गल कीती जावे मैनूं प्रॉपरली एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, हाँ जी, तो ये मेरे को कोई ना कोई समथिंग कुछ लैम्डा या के कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि अपने को पैरेलल होंगे हैं, करके आप लैके चलते हैं, बट स्टिल मेरे को की हो जाएगी एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए लैम्डा प्लस एक्स वन। ठीक है जी, वाई की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी, बी लैम्डा प्लस वाई वन, एंड जैड की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी, सी लैम्डा प्लस जैड वन। ठीक है, इस तरीके नाल मेरे को प्रॉपर क्या आ गया, एक्स वाई और जैड दियाँ वैल्यूज़ आ गई, कुछ ना कुछ मल्टीपल होके। ठीक है जी, तीनों ही वैल्यूज़ ने जो आ गई। हुण एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जैड की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपां नूं पता है कि जिहड़ा पी पॉइंट मतलब आर वैक्टर हुंदा है वो आर वैक्टर की हुंदा है, एक्स आई कैप। ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जैड के कैप हुंदा, ये तो जनरल आपां नूं पता है, इहदा लोकस फाइंड करना वैक्टर दे विच। तो एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी है, ए लैम्डा प्लस एक्स वन। ठीक है, जिहदे नाल की हो गया आई कैप हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी है, बी लैम्डा प्लस वाई वन जे कैप एंड सी लैम्डा प्लस जैड वन के कैप। ठीक है, इदा करके मैंने सारिया वैल्यूज दित्तियां हुई ने। हुण जेकर मैं देखा अगर मैं आई कैप एक्स वन वाई वन जैड वन इकट्ठा करा तो मेरे को की बनूगा, मेरे को बनूगा एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप एंड जैड वन के कैप। ठीक है, और प्लस जेकर मैं लैम्डा कॉमन कट ला तो मेरे को की बन जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप। ठीक है, तो मतलब ये मेरे को की बन गई, वैक्टर फॉर्म बन गई। जो मैंने कार्टीजन फॉर्म दी हुई है उस तो मैंने वैक्टर फॉर्म के कन्वर्ट करना है, तो उस तुसी इदा कर सकते हो। यह तो हो गया पूरा का पूरा एक तरीके नाल फॉर्म होगी क्वेश्चन करन दी, पर आपां इसनूं इदा पूरा का पूरा याद नहीं रखना। आपां ने सिर्फ इन्नी की चीज़ याद रखनी है कि जेकर मैनूं आ चीज़ दी हुई है और उसनूं मैंने वैक्टर फॉर्म के कन्वर्ट करना है। पहली गल तो आप कन्वर्ट करना क्यों है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ने जिहड़े आपां नूं कार्टीजन फॉर्म के करने वधिया लगते हैं, मतलब ईजी लगते हैं, जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ने जिहड़े आपां नूं वैक्टर फॉर्म के करने ईजी लगते हैं, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फटाफट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ਨੂੰ वैक्टर तो कार्टीजन चेंज कर सकीए, कार्टीजन तो वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर सकीए, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकीए। तो आप की करते हैं उसमें चेंज करना सीखते हैं, जरूरी होंगे। ठीक है, चलो
ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, x1 i ਕੈਪ, y1 j ਕੈਪ, z1 k ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, प्लस लैमडा इंटू a i कैप, b j कैप एंड c k कैप। ये मेरे को सीधी सीधी की बन गई वैक्टर फॉर्म बन गई, ठीक है। तो देखो कितनी ईजी सी, नीचे इन्ना चीज़ नूं याद रखना है कि यह हमेशा मेरे को की होया करनगियां, डायरैक्शन रेशोज़ ही होया करनगियां, ठीक है। चाहे वो वैक्टर फॉर्म दी है तो मेरे को ए बी सी की वैल्यू नीचे वाली की होंगी डायरैक्शन रेशोज़ होंगी, और ये मेरे को की होगा वो पॉइंट होगा जिहदे लाइन की इक्वेशन थोड़ी की हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। हुण थोड़ा सा उल्टा कर लैने, अगर मैनू वैक्टर फॉर्म दी हुई है, अगर मैनू वैक्टर फॉर्म दी हुई है तो इस तो तुसी की करनी है, कार्टीजन फॉर्म बनानी है। तो किवें बनाओगे, तो पूरा फॉर्म थोनू करन दी लोड़ नहीं, सीधा पूरा कॉन्सैप्ट देखने की लोड़ नहीं, तुसी बस इन्ना क देखो वैक्टर फॉर्म जेकर थोनू दी हुई है तो मतलब कितना हो गया, थोनू दिता होएगा, इग्नोर इट, हाँ जी, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, प्लस लैमडा इंटू a1 i कैप, b j कैप एंड सी के कैप, ठीक है जी। 1 हटा दो इतों, तो इदा करके मैंने दी होगी, तो इन्हों तुसीं किदां लिखोगे, x माइनस ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट में चक लो, x माइनस x1 नीचे रेशो, प्लस y माइनस y1, ठीक है जी, नीचे रेशो, प्लस z माइनस z1 नीचे रेशो, विच इज़ इक्वल टू समथिंग कुछ लैमडा जाके हो सकता है, ठीक है। सो ये मेरे को की होगी कन्वर्ट तुसीं ईजिली कर सकते हो वैक्टर फॉर्म तो कार्टीजन या कार्टीजन फॉर्म तो वैक्टर, सिंपल इज इट, ठीक है जी। स्टिल कोई डाउट होया तो तुसीं पूछ सकते हो कि हाँ जी मैम ये चीज़ किद्दां होगी जां वो चीज़ किद्दां होगी, ठीक है। हुण आपां नूं पता हुंदा कि कुछ चीज़ां ने जो आपां नूं पता होणियां चाहीदियां ने, लाइक जेकर तुहाडे कोल इंपोर्टेंट चीज़ां, मान लो कोई भी तुहाडे कोल एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन तुहाडे कोल एक्स एक्सिस दे पैरेलल है, ठीक है जी। अगर वो स्ट्रेट लाइन तुहाडे कोल एक्स एक्सिस दे पैरेलल है तो आपां पढ़िया सी कि जेकर वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस दे पैरेलल है तो जिहड़ियां मेरे कोल रेशोज़ होणगियां वो 1 0 0 होणगियां, ठीक है। वो रेशोज़ मेरे को की होणगियां 1 0 0 होणगियां, बट अगर वो लाइन थोड़े कोल वाई एक्सिस के पैरेलल है तो थोड़े कोल रेशोज़ की होणगियां 0 1 0 होणगियां, ठीक है। ये मैं क्यों दस रही हाँ, अगर थोड़े कोल यह चीज़ दित्ती हुई है तो थोड़े कोल जिहड़ियां रेशोज़ ने वो की होणगियां 0 0 1 होणगियां, मैम सानू पता है, थानू पता है, ठीक है। हुण अगर डजन मैटर, मान लो यह जो लाइन है, ठीक है, कहते एक लाइन दी हुई है और वो पास करती है, पास थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यदि इक्वेशन की बनूगी, तो यदि इक्वेशन बनेगी जी x माइनस 1 अपॉन 0 विच इज़ इक्वल टू y सॉरी अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 0 एंड z माइनस 3 अपॉन 0। क्यों, क्योंकि रेशोज़ मेरे को की होणगियां 1 0 0 होणगियां। तो यह चीज़ आपने 110% अपने आप लैके चलनी है कि जेकर हाँ जी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यही रेशोज़ होणगियां, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यही रेशोज़ होणगियां, जेड एक्सिस के पैरेलल है तो यही रेशोज़ होणगियां, ठीक है। तो हुण जो मेरे को यही क्वेश्चन आ गया तो मोस्टली अपने माइंड में आऊगा मैम डिनोमीनेटर 0 आ गया, बट डिनोमीनेटर वाला चीज़ इतने है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के नहीं उलझना कि मैम डिनोमीनेटर 0 आ गया, नॉट एग्जिस्ट हो गया, इनफिनाइट हो गया, जे वो नहीं, दीज आर रिप्रजेंटिंग अवर रेशोज़। तो इदा की कोई चीज़ नहीं है, इन्हें तुसीं बड़ी ईजिली क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ठीक है, क्लीयर है। हुण अगर अपने को गल आ जाती है कि मान लो मैनू दे दिता गया कि एक्स कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, वाई कोई भी वैल्यू दे रखी है, जेड कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, नाल मैनू कुछ आप कर हटे कि कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, जेड एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, बट अगर मैनू रेशोज़ नहीं दी हुई, आई डोंट नो अबाउट मतलब रेशोज़ नहीं दी मैनू, ठीक है, जस्ट एक पॉइंट की गल कर ली, तो यह मेरे को एक पॉइंट होगा जो कि करूँगा रिप्रजेंट अ यूनीक पॉइंट, रिप्रजेंट अ यूनीक पॉइंट, यूनीक पॉइंट में रिप्रजेंट कराया करूँगा इन स्पेस, क्योंकि इत्थे तुहाडे कोल जो है गल हो रही है 3 डायमेंशनल दी। अगर तुहाडे कोल 3 डायमेंशनल की गल हो रही है तो तुसीं कहोगे कि जिहड़ी मेरी पॉइंट है वो अलग, मतलब कहने का की हो गया कि वो तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू भी अपनी यूनीक है, वाई की वैल्यू भी अपनी यूनीक है और जेड की वैल्यू भी अपनी यूनीक है। तो जो मैनू दी हुई है वो मेरे को की होएगी कि यूनीक पॉइंट होएगी, बट वो किहदे विच होगी, स्पेस दे विच होगी। ये चीज़ आपां बेसिक वाली क्लास दे विच भी पढ़ी सी आई थिंक, है ना। तो ये चीज़ नूं तुसीं क्लीयर रखना है। हुण अगर मैनू कल्ली दी कल्ली जेकर मान लो मैनू दे दी एक्स की वैल्यू दे दी 2, वाई की वैल्यू दे दी, चलो वाई की वैल्यू नहीं दी, जेड की वैल्यू दे दी 5, ठीक है। तो मतलब इन्होंने की किया, हुण इन्होंने थोड़ा जिहा उलझाने की कोशिश की, इन्होंने मैनू एक्स की वैल्यू दे दी,
वाई की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, कुछ नहीं कहा इन्होंने, जस्ट इन्ना देता कि एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2 एंड जैड इज इक्वल टू 5 है ना। तो इन दैट केस आप की करांगे जैड इज इक्वल टू 5। तो हुण इत्थे अपने माइंड च आऊगा कि वाई की तो कुछ वैल्यू दी ही नहीं, तो वाई नूं आपां किवें करिए, वाई नूं लैके तो चलना पऊगा ना। हुण देखो इत्थे जो वाई है, वाई इज़ नॉट गिवन। अगर वाई तुहाडे कोल गिवन नहीं है तो मतलब वाई की वैल्यू तुहानूं की पता कितनी है, वेरी करूगी। वेरी किवें करूगी, हो सकता 1 होवे 2 होवे 3 होवे 4 होवे, तो वेरी करूगी वैल्यू, ठीक है। अगर वो वैल्यू वेरी कर रही है हाँ जी, तो तुसीं कहोगे कि वाई मे हैव वैल्यू, कि वाई की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट वो कितनी होगी थानू नहीं पता, तुसीं कह सकते हो कि वेरीएबल हो सके चल सकता है, ठीक है। तो यह जो लाइन है दिस रिप्रजेंट इस तरीके नाल, कई बार वैसे तो थानू पता है बट स्टिल कई बार इदा लिखा आ जाता है, तो तुसीं कहोगे दिस रिप्रजेंट कि जी थोड़ी भी लाइन होएगी वो लाइन की होगी पैरलल होएगी टू वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि देखो उत्थे वाई दी वैल्यूज एक्स अपना स्टिप खड़ा है, ठीक है, जैड अपना खड़ा है, बट वो जो वाई दी वैल्यूज ने वो वेरी कर रही ने, 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है -1 हो सकती है 0 हो सकती है, तो वेरी करनगियां, तो मतलब वो लाइन की होगी वाई एक्सिस के पैरलल होगी, तो लोकस जो है सारा का सारा किहदे आले दुआले घूमूगा, वाई के आले दुआले घूमूगा, ठीक है। सो वो की हो जाऊगा कंप्लीट। तो हुण इहनूं तुसीं किद्दां लिखोगे, इहनूं तुसीं लिखोगे x - 2 अपॉन 0 विच इज़ इक्वल टू वाई नहीं पता कितनी है अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू z - 5 अपॉन 0। तो इसकी जो रिप्रजेंटेशन है वो इस तरीके नाल होएगी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिंपल क्लीयर, ठीक है। हुण यह मेरे को कुछ ना कुछ लैम्डा के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये मेरे को कुछ ना कुछ लैम्डा के इक्वल होंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा, सॉरी 2 नॉट लैम्डा इन छड्डो, हाँ जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा और जैड की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हुण तुसीं आप ही समझो कि यह पॉइंट की दस रहा है, यह पॉइंट दस रहा है कि एक्स सेम है, जैड सेम है, बट वाई जो है वो डिपेंड किहदे उपर हो जाता है, डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑन लैम्डा, ठीक है जी, डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑन ऑफ लैम्डा, के वैल्यूज जिमें जिमें लैम्डा दी चेंज करोगे उमें उमें थोड़े को पॉइंट जो है वो चेंज होगा। इन द सिंपल वर्ड्स आई वांट टू से कि जेकर थानू वाई नहीं दिता होया वो की कहना चाहते हैं कि थोड़ी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरलल होगी, सीधी जी सिंपल जी गल, ठीक है जी, क्लीयर है, उम्मीद है क्लीयर होगा। हुण इहदे विच आपां गल करते करते एक गल तुहानूं दसनी भुल गए कि आपां हमेशा इदां लिख दिंदे x - 3 y - 2 अपॉन 1 जां अपॉन 0 समथिंग कुछ है ना, z - 1 अपॉन 5 है ना, कुछ भी। तो इत्थे मैं हमेशा जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है और जो z का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो हमेशा मेरे को की हुंदा है यूनिट हुंदा, मतलब कहंदा की है 1 हुंदा, ठीक है। बाई चांस अगर तुहानूं इदां दा क्वेश्चन आ जाता है कि 2x - 3 अपॉन 5 which is equal to 4x - 4 upon 4 and 5x plus 7 upon 2 अदर क्वेश्चन आ जाता है, तो तुसी इहदे विच तुहानूं कह दिता जाता है कि दसो पॉइंट कितना है जी, तो तुसी कहोगे मैम पॉइंट 3 4 ते -7 है, नहीं, ठीक है। अपने को फॉर्मेट की है, अपने को फॉर्मेट है x - x1 अपॉन a, मतलब द कोफिशिएंट ऑफ द x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरे को की होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो पहला 1 बना लो, किवें बनाओगे, इसनों पूरे नूं 2 नाल डिवाइड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पैंदा आपां नूं, ठीक है। सो कितना हो जाएगा x - 3 अपॉन 2, अगर ऊपर डिवाइड की है तो नीचे भी करनी पऊगी, नहीं करोगे तो फर्क पऊगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी कोफिशिएंट मैंने की करना है, सॉरी इत्थे मैं x लिखी जानी हाँ, इत्थे z आऊगा, ठीक है। इत्थे कितना आ जाएगा y - 1 अपॉन 1, ठीक है, जिथे कितना आ जाएगा z प्लस 7 अपॉन 5 अपॉन 2, क्योंकि इतने मेरे को माइनस होंगे तो इसमें मैं 2 बारी माइनस लिखना ज़्यादा पसंद करूँगी ताकि मेरे को कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। सो हुण मेरे को जो पॉइंट है, पॉइंट इज़ 3/2 1 एंड -7/2 एंड द रेशियोज आर 5/2 1 एंड 2। तो हुण तुहाडा आंसर गलत नहीं है, हुण तुहाडा आंसर सही है, ठीक है जी, क्लीयर है, उम्मीद है क्लीयर होगा ये पॉइंट कि मेरे को कहने का मतलब की है फॉर्मेट सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही किमें होगा, फॉर्मेट सही होगा जो थोड़े को कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है 1 है और -x1 थानू दिता होया है, ठीक है। हुण हो सकता है थानू की कर दें जी, हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ तो नहीं बोल रही, लग रहा है मैं तेज़ बोल रही हूँ, 20 मिनट के कितनी चीज़ा होंगियां, चलो कोई गल नहीं, रिकॉर्डेड क्लासिस इदा ही होंगे, जल्दी हो जाऊगा थोड़ा या चलो। अगर मैंने 2 पॉइंट्स दे दिते, 2 पॉइंट्स दिते हुए हैं, ठीक है जी, और 2 पॉइंट्स तो मैंने की करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो की करनी है, फाइंड आउट करनी है, हौली हौली बोल दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो मैंने की करनी है, फाइंड आउट करनी है। 2 पॉइंट्स मैंने दे दिते, तो 2 पॉइंट्स मेरे को दिते हुए ने x1 y1 z1, ठीक है,
और दूसरा मैंने दिता होया x2 y2 z2 ठीक है। तो इस तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन किवें फाइंड करिया करोगे। देखो सीधी जी गल है, जो पहला करते सी उही हुण करांगे ठीक है। याद करो अपने को इक्वेशन दी लाइन की है, इक्वेशन दी लाइन है x माइनस x1 अपॉन a विच इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विच इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और ये भी याद करो कि जो तुसी रेशोज़ वाला कॉन्सैप्ट पढ़िया सी, तो आपां पढ़िया सी कि जिहड़ियां रेशोज़ ने वो तुसी किवें फाइंड कर सकते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो जेकर मैं रेशोज़ की जगह उन्होंने आवली वैल्यू पुट करदा कुछ गलत नहीं होगा ठीक है। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन की आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो मतलब कहना की है, जो थानू दो पॉइंट्स दिते हुए हैं और थानू पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन की है, तो तुसीं उसनू ऐदा सॉल्व करोगे बड़ी आराम नाल तुहाडा क्वेश्चन हो जाऊगा ठीक है। क्लीयर है। सेम ही चीज़ किहदे वास्ते आ जाती है, वैक्टर वास्ते आ जाती है कि जेकर मान लो तुहानू वैक्टर रिप्रजेंटेशन दे विच पूछ लिया जाता है ठीक है। तुहानू की दिते हुए हैं, दो वैक्टर्स दिते हुए हैं ठीक है, दो वैक्टर्स दिते हुए हैं, दो पॉइंट्स दिते हुए हैं, तो तुहानू कह दिता जाता है कि तुसीं फाइंड आउट करो कि इक्वेशन ऑफ मेरे कोल की होगी। तो जिवें कि तुहानू पता ही है कि AP वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा इंटू AB वैक्टर होगा ठीक है। हुण इत्थे AB वैक्टर किहड़ा लिया मैंने, क्योंकि मैंने इत्थे एक B पॉइंट दिता होया एक A पॉइंट दिता होया, सो मैं दोनों नूं नाल लैके चलूँगी ठीक है। तो मेरे को कितना आ जाऊगा, पोजीशन वैक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ A विच इज़ इक्वल टू लैमडा इंटू पोजीशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ A। सो मेरे को कितना आ गया जी, मेरे को आ गया R वैक्टर माइनस A वैक्टर विच इज़ इक्वल टू लैमडा इंटू B वैक्टर माइनस A वैक्टर। तो कहने का मतलब की है, वैसे इसमें तुसीं ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्ना मतलब आपां नूं दूसरा मैथड ज़्यादा सही लगता है, सो आपां उन्हें यूज़ करते हैं। बट बाकी काम तो ये भी उही कर रहे हैं जो वाला मैथ काम कर रहे हैं ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स का माइनस से बाकी सारा सेम, बस इत्थे भी दो पॉइंट्स का माइनस से बाकी सारा सेम ही है, कुछ एडा है नहीं, कर सकते हो आराम नाल हो जाएंगे क्वेश्चन ठीक है। चलो इस तो बाद अगर गल की जाए, लैट मैनू दो लाइन्स दे दी हैं, दो लाइन्स के मैंने कहा द फाइंड द एंगल, एंगल मैंने की करना है, फाइंड करना है दो लाइन्स के कितना होगा। अगर मैंने दो लाइन्स एंगल फाइंड करने लिए कह दिता, तो सब तो पहली गल तो दो लाइन्स मेरे को किहड़ियां होणगियां, दो लाइन्स होणगियां x माइनस x1 अपॉन A विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B, A1 लिख लो है ना, B1 एंड z माइनस z1 अपॉन C1। तो दूजी लाइन की होगी, दूजी लाइन होगी x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो ये मेरे को दो लाइन्स ने, दो लाइन्स एक एंगल बनूगा थोड़े को थीटा और एक एंगल बनूगा थोड़े को 180 माइनस थीटा ठीक है। तो एक एंगल थोड़े को अक्यूट होया करूगा एब्सोल्यूटली, दूजा की होया करूगा ऑब्ट्यूज होया करूगा। सो डिपेंड करता अपने क्वेश्चन के उपर कि किवें आपां नूं चीज़ां दित्तियां होईयां ने। चलो तो हुण इस दे विच देखो मेरे को की बन जाएगी चीज़, 1 मिनट ओनली हाँ जी। तो ये मेरे को जो कोस थीटा होगा, मतलब जो एंगल होगा वो एंगल किस दे कोल होया करेगा, उन्होंने मैं मोड़ लैके चलती हाँ, मतलब वो एंगल मेरे को पॉजिटिव तो नैगेटिव दोनों वैल्यूज़ दिया करूँगा ठीक है। किमें वो दसांगे। तो हुण ये देखो मेरे को किने रेशोज़ नूं चकना है, रेशोज़ मेरे को उपर की होया करूँगी, रेशोज़ की डॉट प्रोडक्ट होया करूँगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ठीक है। और डिनोमीनेटर के दोनों का मैगनीट्यूड होया करूँगा, मतलब A1 स्क्वेयर B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर और नाल होया करूँगा A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर ठीक है। तो इदा करके मैं ईजिली की कर सकती हूँ, अपना एंगल फाइंड कर सकती हूँ। हुण देखो मैंने थानू कहा कि एक एंगल हमेशा अपना की आया करूँगा अक्यूट आया करूँगा, तो दूजा एंगल हमेशा अपना की आया करूँगा ऑब्ट्यूज आया करूँगा ठीक है। तो मतलब जो तो थानू क्वेश्चन के कहा होया कि फाइंड द अक्यूट एंगल, तो तुसीं की करना है पॉजिटिव आंसर लेना है ठीक है। पॉजिटिव क्योंकि मोड है ना, तो वही आंसर थोड़े को दो साइन के आऊगा, पॉजिटिव भी नैगेटिव भी, तो पॉजिटिव साइन रखो तो थोड़ा आंसर आ जाऊगा। जो थानू क्या होया फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, तो तुसीं उसनू की कहोगे नैगेटिव साइन के नाल चलोगे। मान लो थोड़ा आंसर 5/2 आ गया, तो तुसीं कहोगे नेगेटिव पॉजिटिव 5/2 ठीक है, और नेगेटिव 5/2 मतलब जो भी एंगल आऊगा। तो हुण अगर थानू कुछ भी नहीं किया होया ना अक्यूट ना ऑब्ट्यूज, दैन इन दैट केस आप हमेशा अक्यूट नूं ही चकना है, हमेशा अक्यूट वाला ही आंसर होया करूँगा। उस केस के विच ऑब्ट्यूज वाले नूं घट प्रेफरेंस है ठीक है। चलो तो ये सीगियां चीज़ां, अगे चलिए जी। एंगल फाइंड आउट हो गया ठीक है। द रेशोज़ दित्तियां होईयां ने, तो रेशोज़ की हैल्प नाल तुसीं आराम नाल की कर सकते हो, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। सेम चीज़ तुहानूं वैक्टर दे विच रिप्रजेंटेशन दे विच भी आ सकती है, वैक्टर दे विच तुहानूं इक्वेशनस दित्तियां होणगियां, तो उदों तो तुसीं की कर सकते हो, अपना एंगल फाइंड कर सकते हो ठीक है, आराम नाल हो चुका जी।
ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3D 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 2D ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 110% ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਫ 2 ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਇਨ ਪਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸਪੇਸ, ਸੋਰੀ ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੋਪਲੇਨਰ, ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਨੋਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਨੋਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਿਊ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਕਿਊ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 3704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਈਦਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਫਾਈਂਡ ਦ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਟਵੀਨ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ 2 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, दूसरी लाइन मेरे को होगी आर वैक्टर विच इज इक्वल टू A2 प्लस लैमडा इंटू B2। ठीक है, सॉरी लैमडा नहीं, कोई अनदर ले लो, के ले लो, जब म्यू लिया जाता जनरली तो कुछ भी ले लो। ठीक है, सो आर वैक्टर इदा करके मैंने 2 लाइन्स दित्तियां हुई हैं। तो मैंने की करना है? मैंने कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पऊगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पऊगी। ठीक है, फिर वधिया तरीके नाल स्पीड बन जूगी। चलो, तो ये मेरे को है A2 माइनस A1, ਇਹਦੀ डॉट प्रोडक्ट करनी है B1 वैक्टर दी B2 वैक्टर दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और डिवाइड करना है ਇਹਦੇ मैग्नीट्यूड दे नाल B1 वैक्टर क्रॉस B2 वैक्टर। ठीक है, तो ये मेरे को की हुंदा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है। ठीक है, और एक इहदा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है स्क्यू लाइन्स का हुंदा है। इन्हों तुहानू एज इट इज़ माइंड दे विच याद क्लीयर रखना पऊगा। ठीक है, हुण जरूरी नहीं है कि लाइन्स स्क्यू ही होणगियां, हो सकदा लाइन्स थोड़ियां पैरलल होण। अगर इंटरसैक्ट कट कर गई फिर तो चलो डिस्टेंस 0 ही हो जाता है ना। बट अगर थोड़े को लाइन्स पैरलल ने तो इन दैट केस थोड़े को जो डिस्टेंस है वो किमें होया करूगा? थोड़े को आर वैक्टर कुछ होया करूगा लाइक A1 वैक्टर प्लस लैमडा इंटू बी वैक्टर। क्योंकि देखो अगर लाइन्स पैरलल ने तो रेशोज़ की होणगियां जां तां प्रपोर्शन होणगियां जां फिर की होणगियां इक्वल होणगियां। सो रेशोज़ आर इक्वल, सो तां करके आपां इत्थे बी वैक्टर नूं सेम ही लैके चलदे आ। तो दूजी लाइन मेरे कोल की होगी? कुछ इस तरीके नाल होगी। ठीक है, तो इत्थे फिर अगेन की कर लो है ना। तो हुण इहदे विच देखो मेरे को की होगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरलल तो मेरे को रेशोज़ की होणगियां सेम होणगियां, इस चीज़ का ध्यान रखियो। ठीक है,
चलो तो हुण इत्थे मेरे को जो मैंने शॉर्टेस्ट सॉरी डिस्टेंस तो सेम ही रहूगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, पहले लाइन के डिस्टेंस सेम ही रहिंदा है। सो डिस्टेंस मेरे को की होया करूगा, मेरे को होया करूगा A2 माइनस A1, मतलब दोनों वैक्टर्स आ माइनस, जिसकी मैंने डॉट प्रोडक्ट करनी है, किहदे नाल डॉट प्रोडक्ट करनी है, हुण एक वैक्टर है गया तो उहदे नाल ही करांगे। नीचे मेरे को मैगनीट्यूड भी किहदा होएगा, B वैक्टर दा होएगा, और ये सारा की होगा मोड दे विच होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांट भी नैगेटिव, डिस्टेंस नैगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्लीयर जी गल है, ये दो चीज़ां क्लीयर हुई होणगियां तुहाडीआं। ठीक है कि तुसीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो किवें फाइंड कर सकते हो। कोई भी एक अद्धा क्वेश्चन ये नाल दी एग्जाम्पल करके देखियो, बड़ी आराम नाल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्लीयर है। रुको मैं कोई एग्जाम्पल देख रही हाँ, ये नाल दा कोई भी क्वेश्चन कर दी हाँ, 1 मिनट ओनली। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन मिले है, चलो एग्जाम्पल है कर लेने हाँ। ठीक है, एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है, सो देखियो थोड़ा जिहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कहते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करो, कि फाइंड करो x-6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू z-2 अपॉन 2 एंड अनदर मैंने दिता होया x+4 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू y अपॉन -2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन 2। ऐदा करके मैंने क्वेश्चन दिता होया, एग्जाम के आया क्वेश्चन है, सो इसनूं देखते हैं आप। ठीक है, देखो सब तो पहली गल तो ये है, ये मैंने दिता होया 1 मिनट। हाँ जी, ये मैंने की दिता होया, ये मैंने दित्तियां हुई ने 2 इक्वेशनस। ठीक है, और इन्होंने दोनों इक्वेशनस के मैंने की करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस। पहला तो मैं चैक करूँगी कि जो मैंने इक्वेशनस दित्तियां हुई ने कि वो इक्वेशन सही फॉर्मेट के हैगियां ने। ठीक है, तो जेकर सही फॉर्मेट के नहीं है, उन्होंने पहला सही फॉर्मेट के ले आओ। ठीक है जी, x-6 अपॉन 1। ठीक है, तो मेरे को कितना हो जाऊगा y-2 अपॉन -2। ठीक है जी, इतने मेरे को कितना हो जाऊगा z-2 अपॉन 2। ठीक है, इसनों 2 लिखो, 2 ही है ये। ठीक है जी, अपॉन 2 एंड दूजी लाइन मेरे को की है, दूजी लाइन है x+4 अपॉन 3 एंड y अपॉन -2 एंड z कितना है z-1 अपॉन -2। तो मेरे को सही फॉर्मेट हो गया। तो हम देखो मैंने सब तो पहला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना सी, उस दे विच मैंने की करना सी A2 माइनस A1 करना सी। ठीक है, तो उदा ही मैं थोड़ा फॉर्मूला नाल दिखा रही हाँ। तो A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1। डोंट फॉरगेट कि A2 मेरे को की है सेकेंड पॉइंट है विच इज़ 4 आयोटा। ठीक है जी, और -0 आयोटा, 0 जे गैप आयोटा बोल रही हूँ, और प्लस हाँ जी, ये तो मेरे को नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो मेरे को पॉजिटिव होगा, और प्लस के कैप। ठीक है, ये मैंने माइनस करना है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इन्हों माइनस कर दो, मेरे को A2 माइनस A1 आ जाऊगा, तो मेरे को कितना आ गया -10 आई कैप। ठीक है जी, जे कैप वाला मेरे को कितना होगा -2 जे कैप और माइनस के कैप, ये मेरे को कितना हो गया A2 माइनस A1 हो गया। इस तो इलावा मैंने की करना है, मैंने करना है B2 और B1 की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, हुण देखो ये मैं एक बार थोड़ा पूरा करके दिखा रही हूँ, बट तुम इन्ना ज़्यादा लिखोगे नहीं उत्थे, है ना, वो तो आप फास्ट करना होंगे, तो चलो थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। तो B1 क्रॉस B2 करोगे तो पहला तो I J तो के आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इतने मेरे को B2 पहला है, सो B2 ਨੂੰ पहला रखांगे। दिस इज़ 3 -2 एंड 2, इतने मेरे को 3 -2 तो 2 है, और B1 मेरे को कितना है, B1 मेरे को है 1 2 2। ठीक है, 1 2 2, तो इतने मेरे को इक्वेशन काट लो। इक्वेशन मेरे को कितनी होगी, आई कैप -4 ठीक है जी, माइनस जे कैप 6 -2। ठीक है, और के कैप मेरे को कितना आ जाएगा 6 माइनस +2। ठीक है, सो इतने मेरे को हो जाएगा -8 आई कैप -4 जे कैप और +8 के कैप। ठीक है, तो हम मेरे को मैथड की कहता सी, एक बार यदा मोड भी आप कढ़ ही लें, यदा मैगनीट्यूड भी कितना होगा, ये मेरे को हो जाऊगा रूट दे विच। ठीक है, 64 + 16 + 64, तो कितना आ गया जी मेरे को आ गया 12 आ गया। ठीक है जी, तो इदा करके मेरे को सारा आ गया। हुण फॉर्मूले के वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला मेरे को की सीगा, फॉर्मूला सीगा A2 माइनस A1। ठीक है जी, ऊपर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का की है मैगनीट्यूड है।
ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ -10 -2 -k, ਠੀਕ ਹੈ। -10 -2 -k, ਇਹਦੀ ਮੈंने ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। -8 -4 +8 -8 -4 +8, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 12 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਡੋਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਕੈਪ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 80 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਪ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ +8 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -8, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 80/12 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 80/12 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋਗੇ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 20/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ मैंने कोई कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की, ऐसा तुसीं भी नहीं है दसन वास्ते। रुको, हाँ जी, इतने -2 आना सी, ठीक है। इन्हों 1 मिनट आप सही करते हैं। इतने मेरे को -2 आना सी, वेट बी वैक्टर के विच, हाँ जी दोनों ही नैगेटिव ने, दोनों नैगेटिव ने, दोनों अगे -2 आना सी। सो ये मेरे को बन जाएगा -4 माइनस माइनस ये मेरे को हो जाऊगा प्लस। सो ये वाली चीज़ तो पूरी की पूरी 0 ही हो जूगी। जेकर ये 0 हो जूगी तो फर्क पै जाऊगा, ठीक है। इनू जो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा। एंड इतने मेरे को बन जाएगा 6 एंड 2 8 बन जाएगा, ठीक है। एंड ये तो मेरे को खत्म हो जाएगा, है ना, -4 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये मेरे को बन गया -8 जे कैप +8 के कैप, ठीक है। तो मेरे को मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मेरे को हो जाएगा 64 + 64, ठीक है जी। ये मेरे को कितना हो गया 128 हो गया। और इतने मेरे को कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है 0। और इतने मेरे को कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मेरे को कितना बन गया -16 और +16 और आई थिंक सो कितने कैलकुलेशन एरर रह गया, है ना, आई डोंट नो कितने जी। तो इस क्वेश्चन के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर मैंने लग रहा है ना, कैलकुलेशन एरर है, हो जाऊगा आराम ना, ठीक है। इसमें होमवर्क रख लो। बाकी पैटर्न से पैटर्न मैं थोड़ा दसने की कोशिश की कि किहड़ा पैटर्न जो है तो फॉलो होगा। सो वो तुसी देख लिया होना आराम नाल, है ना। कैलकुलेशन एरर है तो हो जाऊगा आराम नाल, ठीक है। क्लीयर है, स्टिल नहीं होया आप कर लाँगे, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। क्लीयर है। तो ये तो सी जो तुम 2 लाइन्स के डिफरेंस फाइंड आउट करना होंगे, अगर वो लाइन्स पैरल दित्तियां हुई ने या अगर वो लाइन्स पैरल नहीं भी हैगियां तो तुम डिस्टेंस किवें फाइंड आउट करोगे, सिंपल। क्लीयर। चलो अगे चलते हाँ। हुण एक तो लास्ट पॉइंट रह गया अपना, लास्ट पॉइंट की रह गया कि जेकर तुहानूं फाइंड आउट करने लई कह देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जेकर तुहानूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो बाकी सारिया चीज़ां भी आ गई, ठीक है। पहली गल तो इसका कॉन्सैप्ट थोड़ा जिहा समझ लैंदे आ। लैट ये मेरे को कोई भी एक लाइन है विच इज़ एल लाइन, जेकर तुहानूं लाइन दित्ती हुई है तो तुहानूं ओबवियसली लाइन किस फॉर्मेट दे विच होएगी, x - x1/a विच इज़ इक्वल टू y - y1/b एंड विच इज़ इक्वल टू z - z1/c। इस फॉर्मेट दे विच तुहाडे कोल लाइन की इक्वेशन होया करूगी, ठीक है। और ऊपर कोई ना कोई एक पॉइंट दिता होया विच इज़ ए पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट मैं कोई भी ले लैनी है, ABC नहीं, ABC नहीं लेंदे, है ना। आप x1 y1 z1 x डैश y डैश z डैश ले लो, है ना। तो इदा करके मैंने एक पॉइंट दिता होया जो ए पॉइंट है, कहते इस एक पर्टिकुलर पॉइंट तो तुसीं की करते हो परपेंडिकुलर खिंच रहे हो, ठीक है। हुण ये जिथे जिस पॉइंट के उपर परपेंडिकुलर खिंच रहे हो इन्हों तुसीं की बोलते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुसीं की करना होंदा, फाइंड आउट करना होंदा, ठीक है। तो हुण जेकर देखो ये लाइन है, इस लाइन के उपर कोई भी एक पॉइंट होगा, मैं वो पॉइंट कढ लैनी आ। इस लाइन के उपर कोई भी एक पॉइंट किहड़ा होगा, a लैम्डा + x1, ठीक है जी, b लैम्डा + y1 एंड c लैम्डा + z1 करके मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा इस लाइन के उपर, ठीक है। तो किते ना किते मैं ये कह सकती हाँ कि हो सकता है लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के नाल कि मेरे को यह पॉइंट की हो जू सेम हो जू, ठीक है। जेकर लैम्डा की इदा की वैल्यू जरूर होगी जिथे थोड़े को आ वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट मैंने नहीं पता, इत्थे भी हो सकता है, इत्थे भी हो सकता है, वो पॉइंट तो आ वाला पॉइंट सेम हो जूगा, ठीक है। सो मैंने उस लैम्डा की वैल्यू ध्यान च रखना है। हुण सैकेंड अगर आप गल करिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसमें मैं पी नाम दे देनी हाँ। इस पॉइंट के मैं देख रही हूँ कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के उपर,
अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो डायरैक्शन रेशोज़ ने प्रोडक्ट ऑफ डायरैक्शन रेशोज़ की होंगी है जीरो होंगी है। ठीक है, अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ डायरैक्शन रेशो जीरो होंगी है तो देखो आह सीगा। ठीक है, और मेरे को सीगा पॉइंट जो दिता होया सारे कुछ आप उसनों की कर लैने डायरैक्शन रेशोज़ कढ़ लैने दो पॉइंट्स तो डायरैक्शन रेशोज़ जो तुम कढ़ोगे तो वह किवें होणगियां x1 प्लस ए लैमडा माइनस एक्स डैश होगी पहली डायरैक्शन रेशो, दूजी डायरैक्शन रेशो की होगी बी लैमडा प्लस y1 माइनस वाई डैश होगी, और तीसरी डायरैक्शन रेशो की होगी सी लैमडा प्लस z1 माइनस z डैश होगी। इदा करके मेरे को तीन डायरैक्शन रेशोज़ आनगियां और इन्हां तीन डायरैक्शन रेशोज़ की प्रोडक्ट जो है वो की होगी जीरो होगी किहदे नाल इस लाइन की डायरैक्शन रेशोज़ दे नाल, और इहदियां डायरैक्शन रेशोज़ कितनियां ने ए बी सी। ठीक है, तो ये जो तुम इसके प्रोडक्ट में जीरो रखोगे उत्थे थोड़े कोल की आ जाए करूगी लैमडा की वैल्यू आ जाए करूगी। ठीक है, सो थोड़े कोल की बनेगा थोड़े कोल बनेगा ए इंटू फर्स्ट डायरैक्शन रेशो। ठीक है जी, विच इज़ लाइक दिस, एंड प्लस बी इंटू सेकेंड डायरैक्शन रेशो विच इज़ लाइक दिस, एंड सी इंटू थर्ड डायरैक्शन रेशो विच इज़ लाइक दिस। ठीक है जी, इन्होंने तीनों की प्रोडक्ट में रखो जीरो। इतने थोड़ा कॉम्पलीकेटेड लग रहा है, इतने मैं जनरल वैल्यूज़ लईयां ने, जो तुम सिंपल जी वैल्यूज़ लाओगे नंबर्स होंगे बहुत वधिया तरीके नाल थोड़ा सॉल्व हो जाए करूँगा। इतों तुम की करया करना है, इतों तुम फाइंड करनी है लैमडा की वैल्यू। फाइंड लैमडा, लैमडा जो थोड़े कोल आ गया थोड़े कोल फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाऊगा। क्यों? क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को की सीगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही सीगा। ठीक है, सिंपल हेयर क्लीयर है। तो इतने थोड़े कोल की हो जाऊगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाऊगा। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी कोई पूछ सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है। हुण देखो थोड़े कोल ए वाला पॉइंट भी आ गया, पी पॉइंट भी आ गया और ए पॉइंट भी हैगा, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला तो दस दो इन्होंने लेंथ कितनी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर किवें फाइंड कर सकते हो, दो पॉइंट्स हैगे ने, दो पॉइंट्स तो जो आप फॉर्मेट पढ़िया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, तो इक्वेशन ऑफ दो पॉइंट फॉर्म लगाओ, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ तो थोड़े को इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाए करूगी। ठीक है, एक होर लास्ट अब बचता है विच इज़ इमेज, कि इमेज ऑफ पॉइंट की में होया करूगी। तो इमेज ऑफ पॉइंट के मतलब अपने को की हो गया, ये मेरे को की सीगा परपेंडिकुलर सी, तो ये नीचे इमेज बनूगी। तो ये तो मैंने क्लीयर है कि जोड़ा ए वाला पॉइंट होया करूगा, ये पॉइंट मेरे को की होया करूगा, इन्होंने दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होया करूगा। तो इतने तुम की कराया करोगे मिड पॉइंट कॉन्सैप्ट लगाया करोगे। इमेज ऑफ पॉइंट कढ़न के लिए मिड पॉइंट कॉन्सैप्ट लगाओ। मिड पॉइंट कॉन्सैप्ट का मतलब की हो गया, लैट जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें मैं बी नाम दे देनी है। ठीक है जी, बी नाम दे देनी हाँ, तो मतलब मैंने पता है कि यह मेरे को बी पॉइंट कुछ भी होगा और मेरे को की होगा ए बी का मिड पॉइंट कड्डो, उसनों पी दे इक्वल रखो तो मेरे को की आ जाए करूगी बी की वैल्यू आ जाए करूगी। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के तुम आराम नाल की कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लीयर है। हाँ जी, तो उम्मीद है ये सारिया चीज़ां क्लीयर होणगियां। तो स्टिल किते भी कोई भी डाउट होया तो तुम पूछ लियो। ठीक है, कोशिश करूँगी अज रात को तो जो MCQs वाली क्लास है वो अपलोड कर सकां। ठीक है, थोड़ा जहा लेट होगी मैं, तो जिदे करके अज रात को MCQs वाली क्लास अपलोड कर दूँगी मैं, तो जे नहीं हुई तो कल नूं करांगी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर शुक्रिया तुहाडा सब दा। बस स्टिल किते भी कोई भी डाउट होया तो जरूर पूछियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो, एंड दिस इट, थैंक यू।